Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter in history, the socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism, we had a lot of discussion. Now, right now we are talking about the Russian Revolution. Big event in history which changed the complete political scenario and the political ways in which the things were being carried on. Tsar's rule was there. Tsar's rule finished. People rejected the rule of the Tsar. After that, the next big event that had happened, after rejecting the rule of the Tsar, now it was the time when Bolsheviks have taken up. People were not happy with the Bolsheviks also. हम Bolsheviks के बारे में तो पढ़ रहे थे. In the last class, what we were discussing about the Bolsheviks. Bolsheviks thought that they have established themselves in a very proper manner. Lenin, with his very ambitious policies, tried to take Russia to a different level, to a different world altogether. Lekin, the people in Russia were not ready to accept the Bolshevik move, the Bolshevik ideas. Actually, the people were sick and tired of the initiatives that were being taken by Bolsheviks. कहने को it was Bolshevik way, कहने को it was for the benefit of the Russians, लेकिन in reality ऐसा नहीं था. This was not the case in reality. So, कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया, we have discussed about the civil war. Got it? The civil war that was happening on a very large scale. Also, many small groups were there. ठीक है? Who were these groups? चलो, let's have a revision work. They were the Reds, the Whites. ठीक है? कलर के नेम से ही इनको जाना जा रहा था. And because the Greens, ये लोग अलग अलग ग्रुप्स थे एंड अलग अलग लीडर्स को सपोर्ट कर रहे थे. द ग्रीन्स. रेड्स कौन थे? हु वेर द रेड्स? दे वेर द पीपल हु वेर अगेंस्ट द बोल्शेविक्स. ये पूरा ग्रुप था हु वेर अपोजिंग द बोल्शेविक्स. पीपल हु अपोज्ड बोल्शेविक. ठीक है? आपको ये ग्रुप्स के बारे में क्लियर होना बहुत जरूरी है. Until and unless you are clear about them, आप आगे की बहुत सारी चीजें हो सकता है ना समझ पाए. So Reds were the people. Greens कौन थे? Greens were the socialist revolutionaries. Okay? Socialist revolutionaries, वही जो socialism चाह रहे थे. The supporters of the Bolsheviks, इनको हमने socialist revolutionaries कहा. So Whites, the Greens were the socialist revolutionaries. Got it? And the Whites were the pro-Tsarist. One group was there. ठीक है? In Russia, एक ग्रुप ऐसा था जो जार को सपोर्ट करता था. People who supported the Tsar and they wanted that the king's rule should be there. King's rule को हटाना नहीं है, King's rule को उसी तरह से रखना है. Tsar should get the support. That was the idea of the people. Got it? तो ये लड़ने लग गए और इसमें क्या हुआ? There were the French, there were the American, British, Japanese. उन्होंने कहा कि रशिया में the changes that were happening, it is likely possible that in the coming days, in the coming years, Russia takes up or Russia becomes a socialist country. So the countries which are having a different kind of a government, they were worried with this kind of a progress in Russia. उनको लगा इस तरह का प्रोग्रेस जो है that is not good for
it's not for the betterment of the complete system. So this system that was changing, in this changing conditions, बहुत सारी नई नई चीजें हमारे सामने आ रही थी. We can see so many new things happening. इसमें Russia's change and the ideas that were there, it was having lot of effect. अब क्या हुआ? Bolsheviks were fighting very. Bolsheviks met all of them with full force. ठीक है? Bolsheviks were fighting with all groups with full force. ठीक है, पूरी ताकत के साथ. बोल्शेविक्स क्यों हार मानेंगे भाई? दे हैव मेड द गवर्नमेंट, दे हैव इंट्रोड्यूस द चेंजेस. अब उन्होंने कहा लोगों को चेंजेस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. द पीपल शुड एक्सेप्ट द चेंजेस रादर देन जस्ट क्रिएटिंग अ ह्यू एंड अ क्राई. ठीक है, ये इस तरह के जो आइडियाज हो रहे थे, इस तरह की जो लड़ाई हो रही थी, उसमें बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर. अब हर जगह कहीं पे देयर वाज लूटिंग, बैंडिट्री, फेमाइन, सूखा भी पड़ रहा था, एवरीथिंग बिकेम कॉमन. अब क्या हुआ? सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बोल्शेविक्स वे टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. बोल्शेविक्स का ये कहना था कि किसी के पास भी रशिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. नोबडी can own a property. Every property belongs to the socialist. जितनी भी प्रॉपर्टी है कंट्री में, ये सारा का सारा जो है वो सोशलिस्ट को बिलोंग करता है. इसी आइडिया के साथ द पीपल वे आर गोइंग फर्दर, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस दैट दे टुक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु सीज्ड लैंड. पीजेंट्स तो बड़े खुश हो रहे थे ना कि बोल्शेविक की सरकार है, बोल्शेविक्स ने कहा है सारे लैंड पे कब्जा कर लो. तो व्हेन दीज पीजेंट्स वेंट एंड सीज द लैंड, तो दे वर वेरी क्रूएल टू देम. ओके, अब दीज वर द पीपल हु वर, भाई जिसकी प्रॉपर्टी है वो आराम से किसी को प्रॉपर्टी दान में कैसे दे देगा? हाउ कैन एनीबडी गिव? इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनती है, या फिर प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है, किसी को बुला के इसी तरह से प्रॉपर्टी दे दे, हाँ भाई आ जाओ, ले जाओ प्रॉपर्टी ले जाओ. इट डजंट हैपन लाइक दिस एंड इट डजंट मेक सेंस. सो द सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वेर वेरी हार्श, बहुत ही बुरी तरह से ये ट्रीट करते थे टू द पीजेंट्स हु केम टू सीज लैंड, जो उनकी जमीन पे कब्जा करने आते थे. दे यूज्ड टू से, देखो गलत नहीं है, जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है अपनी प्रॉपर्टी बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? somebody is coming, a group is coming and doing गुंडेइज्म, हुगलिज्म, तो वो चुपचाप बैठे तो नहीं रहेंगे. so they raised their voice and they said very harsh to the peasants who came to seize land. जमीन पे जो लोग कब्जा करने के लिए आ रहे थे, उनके खिलाफ इन लोगों ने पूरी मोर्चेबंदी कर ली थी. एंड क्या हुआ? सच एक्टिविस्ट, सच एक्शंस, इस तरह की जो बड़ी बड़ी हरकतें हो रही थी, इट लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक्स. जो लोग पीजेंट्स थे ना, गरीब थे, उनके साथ इतना बुरा नहीं करना है. सो व्हेन दे मिसट्रीटेड पीजेंट्स, बहुत बुरी तरह से उनको मार डालते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे, या पुलिस यूज्ड टू मिसट्रीट देम. तो नाउ दे सेड कि दोज हु आर कमिंग टू सीज द प्रॉपर्टी, उनको नॉन बोल्शेविक्स लॉस्ट द सपोर्ट. मतलब प्रो जारिस्ट, व्हाइट्स का सपोर्ट ना कम होने लग गया. प्लीज अंडरस्टैंड, ये वो लोग थे जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी. जार के टाइम पे इन्होंने काफी सारी प्रॉपर्टी बना ली थी, ये वो लोग थे. तो नाउ व्हेन दे वर बीइंग वेरी हार्श टू द पीजेंट्स, दे अपोज्ड इट. इसके बाद क्या हुआ? जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. 1917 में उनका रूल शुरू हुआ था. बाय 1920 बोल्शेविक्स controlled most parts of Russian Empire.
ज्यादातर रशियन एम्पायर पे इन्होंने कब्जा कर लिया था एंड इनको काफी सारे लोगों का सपोर्ट था। बोल्शेविक्स ना, अब क्या होता है ना, व्हेन समबडी इज इन पावर, तो जो छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं ना, वो भी सपोर्ट देने लगते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, कैरी ऑन योर मूवमेंट एंड वी आर विथ यू। तो दे वेर सपोर्टेड विथ द नॉन रशियन नेशनैलिटीज एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। सपोर्ट किसका मिल रहा था इनको? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ग्रुप्स तो बन गए, लेकिन वन ग्रुप वॉज देयर, सम ग्रुप्स वेर देयर अदर देन दिस। व्हाइट्स, रेड्स एंड ग्रीन से अलग हटके भी कुछ ग्रुप्स थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। ओके, बोल्शेविक्स जो पूरे 1920 तक द होल ऑफ द रशिया वाज कंट्रोल्ड बाय द बोल्शेविक्स। So they were the Bolsheviks. They got support from some people. Okay, Bolsheviks got support from, किससे इनको सपोर्ट मिला? नॉन रशियन, जो रशिया के नहीं थे, द पीपल हु डिड नॉट बिलोंग टू रशिया, लेकिन रशिया में ही रह रहे थे। सो नॉन रशियन नेशनैलिटीज एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। अब ये जिहादिस्ट कौन थे? प्लीज अंडरस्टैंड हु वेर दिस जिहादिस्ट। पहला तो रशिया के रहने वाले लोग तो बोल्शेविक्स के खिलाफ हो गए थे, तो जो नॉन रशियंस थे वो बोल्शेविक्स के फेवर में थे। नॉन रशियन नेशनैलिटीज वेर फेवरिंग बोल्शेविक्स एंड द मुस्लिम जिहादिस्ट वेर देयर। जिहादिस्ट कौन थे? जिहादिस्ट वे दोज पीपल whose cooperation did not work, where Russian colonists themselves turned Bolshevik. Okay, वहां पे कुछ जगह पे क्या हुआ कि it worked, some places this did not work. Everybody was supporting the Bolsheviks, लेकिन some places what happened, Russian colonists turned into Bolshevik. अपने आप डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, the people cannot declare on their own. Some of the Russian people who were there, they declared, non-Russians were there, they declared themselves as Bolsheviks, कि हम भी बोल्शेविक है, हम भी बोल्शेविक है। बोलने से नहीं होता है। There has to be action, there has to be certain things which prove them as the Bolsheviks. So, certain places, it was not successful. It was not successful means support was there, but some places the support failed. जैसे कि खीवा में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. You will be, if you are not understanding with this, please try to understand with the example in खीवा. खीवा कहाँ पे है? खीवा is in Central Asia. खीवा Central Asia में Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists. ठीक है? सेंट्रल एशिया खीवा में ये एक बहुत बड़ी सी इंसिडेंट हुई थी विच वॉज कंडेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. बोल्शेविक जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मर्डर्ड. ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से मार डाला था. किसको मार डाला था? दे हैव ब्रूटली मर्डर्ड लोकल नेशनलिस्ट. खाली उन्होंने बताया कि नहीं, वी आर सेविंग द सोशलिज्म. मर्डर्ड लोकल नेशनलिस्ट in the name of socialism. सोशलिज्म के नाम पे इन्होंने क्या किया? बहुत सारे लोगों को मार डाला. जबकि ये वो लोग थे जो कहते थे कि बोल्शेविक हैं. They used to say that they are Bolsheviks, but they were not the Bolsheviks. They were the colonists जिन्होंने कुछ जगह पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, कॉलोनीज बना ली थी, एंड अब ये वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो कहते थे हम तो बोल्शेविक हैं, हम तो बोल्शेविक हैं, बट इन रियलिटी इट वॉज नॉट देयर. ओके, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? मेनी वी आर कंफ्यूज कि बोल्शेविक गवर्नमेंट आखिर है क्या. समझ रहे हो?
बोल्शेविक्स, कुछ लोगों ने बोल्शेविक्स का नाम जबरदस्ती खराब कर दिया था। ओके, दिस इंसिडेंट, ये जो हमने बताया है, ये वो लोग थे, दोज हु वेयर इन रियलिटी नॉट द बोल्शेविक्स, दे वेयर जस्ट द पीपल हु वांटेड डिस्टर्बेंस इन रशिया। रशिया में जो लोग डिस्टर्बेंस चाहते थे, they were the people जो बोल्शेविक्स का नाम खराब कर रहे थे। एज अ रिजल्ट इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ एंड बोल्शेविक्स हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। तो many people got confused हो गए लोग about Bolshevik role in nationalism, मतलब रशियन नेशनलिज्म, कि ये सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, बोल्शेविक गवर्नमेंट है, मार भी डाल रहे हैं लोगों को, आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली में दे वर नॉट द रियल बोल्शेविक्स। अब क्या हुआ, ज्यादातर जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज वेर देयर, दे वेर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। अब देखो पॉलिटिकल चेंजेस, नाउ जस्ट सी सिविल वॉर में ही अब some countries were there. USSR is a big country, ना, was क्यों कह रही हूं मैं, it is a big country. So in USSR this was a very big incident where some of the countries, some of the non-Russian nationalities were given political autonomy. Some non-Russian nationalities were given political autonomy. ठीक है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी लोगों को मिल रही थी इन सोवियत, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत यूनियन, also called as USSR. Got it? अब क्या हुआ, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. रशियन एम्पायर जब क्रिएट हुआ तो छोटी छोटी कुछ स्टेट्स थे, देयर वर सम स्टेट्स, सम कंट्रीज वेयर देयर, जो अपने हिसाब से अपनी चीजों को चला रहे थे, तो दे वेर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी कि ठीक है, आपका सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलने दीजिए, let it go the way it is going. Got it? तो as a result the states, Bolsheviks ने finally रशियन एम्पायर बना दिया in December 1922. Bolsheviks finally made रशियन, क्या हुआ कि अब ये जो रशियन एम्पायर जो इन्होंने बनाया था, द बोल्शेविक्स फाइनली मेड द रशियन एम्पायर इन 1922. 1922 में एम्पायर को हटा के दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन मैनर। अब एक बारी ये कंबाइन हो गया विथ अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। आफ्टर दिस सम प्लेसेस, भाई आपने अब इंडिया ने सपोज पाकिस्तान को फ्री कर दिया, पाकिस्तान दे दिया, अब पाकिस्तान की इंटरनल मैटर्स में अगर बार बार इंटरफेयर करेंगे तो द पीपल विल नॉट फील हैप्पी ना, वो उनको बहुत ही बुरा लगेगा कि भैया आपको फ्री कर दिया है, हमको हमारा स्टेट दे दिया, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट, वहां की जो गवर्नमेंट थी, दे फोर्स देम टू फॉलो देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। आफ्टर सम टाइम Bolsheviks forced the local states to follow
their rules and regulations. Got it? अपने तरीके से ये चाहते थे कि सबको चलाएं. अब इन्होंने क्या किया? दे डिस्करेज्ड नोमैडिज्म. नोमैडिज्म क्या था? दे वांटेड टू विन ओवर डिफरेंट नेशनैलिटीज वेयर ओनली पार्टली सक्सेसफुल. हर जगह को अपने में मिलाना चाहते थे, लेकिन some of their policies were opposed by their own countrymen and the people who were away. जो थोड़े से दूर भी थे, जिनको इन्होंने फ्री भी कर दिया था, उनको भी बोल्शेविक्स का आइडिया पसंद नहीं आ रहा था. Got it? This is how the Bolshevik and their popularity started going low. यहां से बोल्शेविक्स की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होने लग गई. इसमें क्या हुआ? When the October Revolution had happened, some of the incidents which were major incidents, we need to understand what were these major incidents. Come, let's see it in the book itself. So students, just now that we were discussing about the civil war, ek bari I'll show you, we have discussed this topic, the civil war. In that we have discussed about the October Revolution. इसमें some incidents are given here कि when the October Revolution has happened, what was the situation in the countryside? Countryside means गांव में, गांव के लोगों के बीच में एक्चुअली हो क्या रहा था, इसके ऊपर में देयर आर टू व्यूज. दो तरीके के आइडियाज आ रहे हैं. पहला ये है कि जस्ट सी दे आर सेइंग, यहाँ पे वन थिंग नेसेसरीली दैट इज मेंशन्ड इज कि when the uprising, news of the uprising reached the villages, ठीक है, गांव गांव में अपराइजिंग हो गई है. बोल्शेविक्स हैव टेकन ओवर द कंप्लीट पावर, जार को हटा दिया गया है, एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट हैव ऑल्सो बीन रिमूव. तो क्या हुआ? व्हेन इट रीच्ड द विलेज, जब ये न्यूज़ विलेज में पहुंची तो पीपल वेर वेरी हैप्पी. Happy in the sense that Bolsheviks will now give them their जो इनका हक है, whatever is the right of the common people, Bolsheviks will provide them that. लोगों के अंदर में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुशी थी. So free land होगा, war will come to an end, and the day the news arrived, जिस समय ये खबर यहाँ पहुँची, ठीक है, सबसे ज़्यादा खुशी लोगों की थी कि देयर वुड बी फ्री लैंड. पीपल थॉट कि लैंड फ्री हो जाएगा तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी. व्हेन द न्यूज़ हैज़ रीच्ड देयर, लैंड ओनर्स, इन्होंने क्या किया ना, दे वेंट, जो कि लैंड ओनर्स थे, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, जिनका अपना ज़मीन था, द मैनर हाउस वॉज लूटेड. जो उनका जो घर था जहाँ पे ये लैंडलॉर्ड्स रहते थे, दैट वॉज लूटेड, एंड हिज स्टॉक फार्म्स वेयर रिक्विजिशन्ड. लोगों ने, रिक्विजिशन्ड मीन्स लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था. गॉट इट? दिस वॉज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी दैट हैज़ हैपेंड. एंड हिज वास्ट ऑर्चर्ड, जो उनका बहुत बड़ा सा एक एप्पल का खेत था, वो भी कट डाउन हो गया. People have cut it down and sold to the peasants for wood. किसानों को बेच दिया गया था ताकि वो उसमें से अपना वुड निकाल लें. जिसको जितने लकड़ी की ज़रूरत है वो उस लकड़ी का इस्तेमाल कर सकता है. इसके बाद ऑल हिज फार, ये क्या हुआ कि जंगल भी होते थे. मैनर हाउस वॉज 40 to 50 एकड़ लैंड में द मैनर हाउस वॉज स्प्रेड. और रहता कौन था? जस्ट द लैंडलॉर्ड एंड हिज फैमिली. Hardly 10 to 15 people used to live there. तो landowner's manor house was looted, his stock farms were requisitioned, वापस से कब्जा कर लिया गया, and फलों का जो बगान था, vast orchard. What is orchard? Orchard is फलों का बगान. The fruit gardens are called as orchard. उसको भी लोगों ने काट दिया. The vast orchard was cut down and sold to the peasants for wood. बताओ, फल लगे हुए हैं, उसको काट के उसकी सारी लकड़ी जो है वो किसानों को बांट दी गई. क्या मतलब बनता है? थिंक अबाउट इट.
ठीक है. Of course the people were angry, of course the people were dissatisfied, but then of that dissatisfaction some things very wrong they were doing. All his buildings, all his far buildings were torn down. जितनी भी इनके buildings थे उसको पूरी तरह से इन्होंने तोड़ दिया. ओके, एंड इट वॉज लेफ्ट इन रूइंस. पूरी तरह से उसको गिरा दिया गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया. वाइल द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी जमीन आपस में लोगों ने बांट ली. द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स हु वर प्रिपेयर्ड टू लिव द न्यू सोवियत लाइफ. नई जिंदगी का स्वागत करने के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार थे. मतलब इनिशियली शुरू में जब ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, व्हेन इट हैज स्टार्टेड, एट दैट टाइम लोगों का रिएक्शन क्या था, दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर. गॉट इट चिल्ड्रन? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. द फार्मर्स वेर प्रिपेयर्ड टू लिव द न्यू सोवियत लाइफ. ये हमको कहाँ से मिला है? फेडोर बेलोव. ठीक है, किसकी बुक में से मिला है? फेडोर बेलोव नाम के एक इंसान थे. हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फार्म. सोवियत कलेक्टिव फार्म की क्या इतिहास था, क्या हिस्ट्री थी, इसके बारे में हमको यहाँ पे पता चलता है. ओके, एक तो हो गया कि कंट्री साइड में. दूसरा क्या था कि द पीपल हु were having lot of land, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, the land owners who were there, they wrote to a relative. उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को चिट्ठी लिखी that what has happened at the state, कि स्टेट में क्या हुआ है. the coup happened quite painlessly, quietly and peacefully. मतलब कि Tsar's rule was over, provisional government was also finished. So first days were unbearable. शुरू के कुछ दिन जो थे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे. So one of the gentlemen, Mikhailovich, this is the name of the farmer there, the state owner, जिनके land थे, was calm. The girls also, I must say, the chairman behaves correctly and even politely. सब लोग बहुत ही अच्छे से behave कर रहे हैं. 2 काऊ हमको दिया गया है, 2 हॉर्सेस. रिमेंबर हमने एक जगह पे पढ़ा था, वन प्लेस वी हैव रेड दैट द हाउसेस वेयर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड. घरों को भी बांट दिया गया था. बड़े बड़े लोगों के बीच में इन घरों को बांटा जा रहा था. वी वेर लेफ्ट, 2 cows were there, 2 horses were there. Servants tell them at all the time not to bother us. हमेशा सर्वेंट्स को कहा जाता है कि इनको परेशान मत करो, लेट देम लिव, ये जैसे जीना चाहते हैं जीने दो. वी वाउच फॉर देयर सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी. इनकी खुशहाली के लिए, इनकी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं. वी वॉन्ट देम ट्रीटेड एज ह्यूमनली एज पॉसिबल. जितना पॉसिबल हो पाए उतने ही अच्छे से इनको ट्रीट करना है. ओके, एंड बहुत जगह पे इस तरह की अफवाहें भी थी. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर वेर रूमर्स. रूमर्स मीन्स अफवाहें थी दैट सेवरल विलेजेस आर ट्राइंग टू एविक्ट द कमिटीज. कमिटीज जो बनी थी उसको वो निकालने की कोशिश कर रहे थे. दे वर ट्राइंग टू एविक्ट. एविक्ट मीन्स निकाल देना. ठीक है, एंड रिटर्न द स्टेट टू मिखाइल मिखाइलोविच को ये रिटर्न कर देना है स्टेट. आई डोंट नो इफ दिस विल हैपन. पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, और इफ इट्स गुड फॉर अस, ये सही है कि नहीं है. ये तो मतलब कि द पीपल वेयर अनेबल टू डिसाइड एंड टेक अ फाइनल डिसीजन. दैट इज वॉट इज मैंशन्ड हियर. सो इफ इट्स गुड फॉर अस, अगर ये अच्छा है, बट वी रिजॉइस दैट देयर इज कॉन्साइंस इन आवर पीपल. हमारे लोगों के बीच में ये सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए. देयर हैज टू बी कॉन्साइंस इन आवर पीपल. गॉट इट? सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम from the book. The Serge Skiman has written this book. Echoes of the native land means the native land which is there, वहाँ की इको आ रही है 2 centuries. ओके, 2 centuries के बारे में यहाँ पे बताया गया है. गॉट इट चिल्ड्रन?
So this is what I wanted to show you. One activity is given here. You can see this is a very nice activity. You can do this. Two views of the revolution is given here. कंट्री साइड में मीन्स गांव में इस तरह के दो रेवोल्यूशन हो रहे हैं. यू आर ऑल्सो अ विटनेस. जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वॉट इज योर रिएक्शन? आपको एक छोटा सा, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट अकाउंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ ओनर ऑफ एन स्टेट. अगर आपके पास स्टेट है तो आपका क्या व्यू होगा? what would be your view if you are owner of a state, if you are a small peasant, अगर छोटे से farmer हैं, then आप because you are seeing the revolution, आप revolution को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ठीक है, that is what the people wanted, that is what they were suggesting. Got it? If you are a journalist, अगर आप एक journalist हैं तो आपका क्या एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है. गॉट इट चिल्ड्रन? सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक टुडे चिल्ड्रन. विल बी डूइंग फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.